Cyclone Remal makes landfall in the coast of Bangladesh and adjoining West Bengal, leaving a trail of destruction. The landfall commenced at 8:30 p.m. last night over the adjacent coast of West Bengal and Bangladesh. The primary regions affected by the cyclone include West Bengal, coastal Bangladesh, Tripura and some other parts of the northeastern state. More than 1 lakh people have been evacuated from vulnerable areas in West Bengal before the cyclone struck. The West Bengal government shifted around 1.10 lakh people from coastal and vulnerable areas to cyclone shelters, schools and colleges. Prime Minister Narendra Modi chaired a meeting to review the response and preparedness of the storm, while Governor C.V. Ananda Bose monitored the situation closely. So, of course, the latest developments there coming in from West Bengal, where Cyclone Remal has in fact ravaged parts of Bengal. There's waterlogging in several areas across West Bengal. Flights have of course been cancelled. We're learning at this point of time that 1.10 lakh individuals have been evacuated. They have been sent to schools, colleges and various other safe shelters. And in fact, of course, West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee has said that has issued a statement and said that everyone should stay safe. They should be inside their homes. In fact, BJP National President JP Nadda also gave instructions to the Karyakartas in West Bengal, saying that whatever requirements are there, whatever help is required, they should be there. Help and aid should be given amidst, Cyclone Remal there. And, there's of course a lot going on. NDRF has of course been deployed all across West Bengal. So of course latest developments there coming in as far as Cyclone Remal is concerned. You can see those visuals on your screens, viewers. It shows the situation on ground. We're of course learning that there's been a little bit of damage also as far as houses are concerned. Some houses have been damaged. Some trees have of course also been broken, is what we're learning. All right, my colleague Rainak Datta with us on the broadcast. Rainak, give us the overall picture in West Bengal. What exactly is taking place? What's the damage like? And give us an overall picture. एकदम देखिए, रेमल तूफान जब कल रात को टकराया, रात 11:30 बजे से लेकर करीब 4 घंटे तक रेमल का जो लैंडफॉल प्रक्रिया वो लैंडफॉल चलते रहा और उसका इफेक्ट सबसे ज़्यादा साउथ 24 परगना और कोलकाता में देखने को मिला। कोलकाता में एक दीवार टूट के एक आदमी का मौत भी हो चुका है, जैसे कि कोलकाता पुलिस की तरफ से कंफर्म किया जा रहा है। रात 12 बजे के करीब मोहम्मद सजीब, जो कि एंटली का रहने वाला है, वो जब घर से निकले थे और एक घर का जो दीवार टूट पड़ा था उनके सर में और उनको हॉस्पिटलाइज किया गया था। Okay, I think सुंदरबन एरिया में इस जगह में रेमल का लैंडफॉल हुआ है। पश्चिम बंगाल का सागर द्वीप और बांग्लादेश का पेचुपारा, ये दोनों के बीच में रेमल का लैंडफॉल हुआ है और उसका जो इफेक्ट सबसे ज़्यादा वो साउथ 24 परगना में दिखने को मिला है। बहुत सारे घर टूट गया है, पेड़ भी उखड़ गया है, जैसे कि रिस्टोरेशन का प्रोसेस अभी चल रहा है और उसके साथ साथ ही रेमल का जो डर अभी भी बरकरार है। मैं एक बार दिखाने का कोशिश कर रहा कि जो तस्वीर, वो तस्वीर ही साफ कह देता है कि जो ऊपर से लहरें हैं। दीघा का तस्वीर मैं आपके सामने रख रहा हूँ और दीघा में जो सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए प्रशासन की तरफ से जो दीघा का टूरिस्ट को हटाने का कोशिश किया जा रहा है, माइकिंग किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से ये भी देखा जा रहा है कि जो टूरिस्ट है वो समुद्र के अंदर ना जाए, क्योंकि जैसे कि IMD की तरफ से कहा गया है कि आज शाम तक ये वो आफ्टर इफेक्ट बरकरार रहेगा। आफ्टर इफेक्ट में 5 जिला को हाई अलर्ट कर दिया गया है, जिसमें पूर्व मेदिनीपुर, साउथ 24 परगना, नॉर्थ 24 परगना, कोलकाता, हावड़ा ये शामिल है और इसके ऊपर भारी बरसात हो सकता है, तेज हवाएं चल सकता है और जो समुंदर है वो समुंदर का लहर करीब 1.5 से 2 मीटर तक हो सकता है। और इसी वजह से कल रात में भी दिखा गया था, पुलिस की तरफ से माइकिंग किया जा रहा था, पेट्रोलिंग किया जा रहा था दीघा में और आज सुबह से भी जो भी टूरिस्ट बाहर आ रहे हैं, टूरिस्ट आके
समुद्र का जो ये दृश्य ये देखने का कोशिश कर रहे हैं उनको भी सतर्क किया जा रहा है कि ये सिचुएशन अभी टला नहीं है। रेमल का जो इफेक्ट वो अभी तक टला नहीं है। रेमल का इफेक्ट में कभी भी बरसात हो सकता है और इसी सिचुएशन में प्रशासन का एक ही नज़र है कि किसी भी तरीके का पूरी हादसा ना घटे। जिस तरीके का कल रात में दिखा गया था रेमल का जो इफेक्ट सुंदरबन एरिया में पड़ा था और उसके साथ कोलकाता में भी पूरी रात भर बारिश हुआ और दीघा में भी जो मौसम है वो मौसम भी ख़राब हो गया था। कल दिन भर बारिश हुआ और अभी का जो सिचुएशन भी सही नहीं है। अभी भी किसी भी वक्त बारिश हो सकता है और सुबह से ही दिखा जा रहा है जो तेज़ हवा चलने लगा है दीघा में और उसके साथ साथ ही हल्का हल्का बारिश भी हो रहा है कभी कभी। और फिलहाल जो परिस्थिति है वो परिस्थिति के ऊपर प्रशासन की नज़र है, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का नज़र है और उसके साथ साथ ही दिल्ली सरकार का भी नज़र है। वो होम मिनिस्ट्री की तरफ से पूरा जो रिपोर्ट मांगा जा रहा है और रिपोर्ट के ऊपर पुलिस का पूरा नज़र है और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की तरफ से भी दिखा जा रहा है कि किसी भी तरीके का हादसा ना हो और जिस जगह में इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट आया है उस जगह में जल्द से जल्द रिस्टोरेशन का जो काम हो रिस्टोरेशन का काम कंप्लीट किया जाए उसके ऊपर नज़र है। और सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो है टूरिस्ट को हटाना, टूरिस्ट को संभालना, क्योंकि जो जिस जगह में रेमल का इफेक्ट आने वाला है उसमें से बहुत सारे टूरिस्ट स्पॉट भी शामिल है। दीघा, मंदारमनी, बौखखाली के जैसे टूरिस्ट स्पॉट भी शामिल है और इसी वजह से टूरिस्ट को सेफ जोन में लेके जाना, टूरिस्ट को सेफ रखना प्रशासन के लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज है। और बहुत सारे लोग इधर आए हैं और मैं एक बार कोशिश करूंगा उनसे बात करने के लिए। दादा, रेमल का इफेक्ट देखने के लिए आए थे क्या नॉर्मल एंजॉय करने के लिए? पहले से ही आया था तो आके यहाँ पे रेमल देखना मिल गया, यही खुशकिस्मती है। पर यहाँ कुछ हुआ नहीं ज़्यादा ना। दादा कैसा लग रहा है मौसम? बहुत बढ़िया लग रहा है। कोलकाता में तो बहुत बारिश हो रहा है लेकिन इधर बहुत अच्छा मौसम है। यहाँ कोई बारिश भी ज़्यादा नहीं हुआ, तूफान तो ज़्यादा आया ही नहीं। बहुत सुहाना मौसम है। मैं आज जाने वाला था इधर से। मैं अक्सर आते रहता हूँ म्यूज़िक वीडियो के लिए, लेकिन यहाँ भी आया था म्यूज़िक वीडियो के लिए। मैंने म्यूज़िक वीडियो बना, एक्चुअली मैं सिंगर हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है। आज रुकने का मन हो गया है, आज हम रुक जाएंगे, कल जाएंगे फिर। एकदम ही जो मौसम है वो मौसम को एंजॉय लोग कर रहे हैं, मगर प्रशासन की तरफ से भी माइकिंग किया जा रहा है और उसके साथ साथ जो डिजास्टर मैनेजमेंट टीम है वो उनको भी इधर मौजूद रखा गया है कि किसी भी तरीके का हादसा ना हो। जो टूरिस्ट है उनको मना कर दिया गया है। Absolutely. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.